Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Whenever we are working with login module, basically we may require to work with logon, we may require to work with reset password, we may require to change the password. So how to log on we have already discussed, how to reset the password we have already discussed. Now in today's class we will be discussing how to change the password. Clear, students? Yes, sir. तो उसके लिए हम क्या? प्रोग्राम बनाते हैं, हाउ टू चेंज द पासवर्ड का प्रोग्राम बनाएंगे. नोटपैड स्क्रीन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए, तो हमें इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू डिजाइन अ फ्रेम, then we must be having a label for username, we must be having a text box for username, we must be having a label for old password, we must be having a password field for old password, we must be having a label for new password, we must be having a label for confirm new password, and we must be having password boxes for old password, new password and confirm password, and we must be having two buttons, one is for change, another is for close. Clear, students? Yes, sir. Therefore, first of all, we will import all the required package. First one is Swing, second one is AWT, अभी हमें इन दोनों पैकेज की रिक्वायरमेंट है. Then we will define a class. Suppose we say change password. We will inherit the class from JFrame. Then we will declare all the components that we are required to work with. First of all, we are required to work with a container. Therefore, we will declare an object of container class. We are required to work with 4 labels: username, old password, new password, and confirm new password. We are required to work with a text box to get username from the user. We are required to work with 3 password field, say P1, P2, and P3. We will be requiring to work with 2 buttons. Therefore, we will create 2 objects of JButton class. So far, we are required to work only with those objects. We are also required to work with database connectivity. Therefore, we will create an object of connection interface, an object of prepared statement interface, and we are also required to retrieve the data from the database. Therefore, we will create an object of result set interface. To work with these objects, we are required to import SQL package. Now we will define a constructor, change password. Here, first of all, we will design our frame. We will say set title, change password. We will say set size. We will say set location. We will say set resizable, false. We will say set default close operation. Then exit on close. Clear, students? Yes, sir. Now we will instantiate container object C equal to get content pane. We will create an object of phone class.
Now we will instantiate the label L1 equal to new J label username. Then L1 dot set font F1. Then L1 dot set bounds. Set bounds. लेफ्ट से 50, टॉप से 50, विड्थ हमने दे दी 100, कॉमा हाइट हमने दे दी 20. 20. Then C L1 dot dot add add. C dot add L1. L1. Now we will say T1. L2. Then J text field. Text field must be blank. Set font. Now left हमने इसकी 50 दी है, width हमने इसकी 100 दी है, 50 और 100 150, 100 का स्पेस दे देते हैं. This will become 250. Sorry, left will be 250. Top will remain same. Width जो भी आप देना चाहते हैं, suppose you say 100. Clear 100. students? Yes, sir. Now for L2. Old password. This will be for old password. Left will remain same. Top 50 ली थी, 20 हमने स्पेस लिया था, 50 और 20 70, 50 का स्पेस ले लेते हैं, 70 और 50 120. Then P1. New J password field. Then set bounds will remain same, only top will be changed. Top change on 120. 120. This is for New L3. password. New password L3. Left will remain same, top will change, 120 or 20, 140, 140 or 50, 190. Then P2. Then left will remain same, only top will be changed. This will be 190. This is for L4. For confirm password. Left will remain same, top will be changed, 290 or 20, 210, 210 or 50, 260. 260. This is P3. Left will remain same, top will be changed, 260. Clear? Now we will create Yes, sir. buttons. Button. This is for B1. Change. Left थोड़ी सी change कर लेते हैं, suppose 80, 260, 20, 280, 280 और 50, 330. Right, comma, right. B2. This will be J button. This will be B2.
will be Close. This will be 220. 80 and 100. 180, 180 or 40, 220. This will be 220. Comma top will remain same, width will remain same, height will remain same. Clear, students? Yes, sir. So, closing of constructor, closing of class. Class, Main class. change Change password then. password, demo, public static void main string s, change password cp equal to new, change password सेव कर लेते हैं ई कॉलम सैंपल चेंज पासवर्ड डेमो डॉट जावा सेव कंपाइल कराते हैं जावा सी स्पेस चेंज पासवर्ड डेमो डॉट जावा देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कमांड प्रॉम्प्ट Yes, sir. एरर आ गई है कैन नॉट फाइंड सिंबल जे लेबल सही कर देते हैं इसको जे लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है काम करा अगेन कंपाइल करते हैं नहीं has been compiled successfully students Yes, sir. चलिए अब इसको रन कराते हैं जावा स्पेस चेंज पासवर्ड डेमो देख पा रहे हैं Visible in. आउटपुट देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यस सर सर क्लोज बटन आ रहा है बस. क्या वैसा ही सिर्फ क्लोज बटन आ रहा है बाकी कुछ नहीं आ रहा बता सकते हैं क्यों कंटेंट पेन पे ऐड तो करा है. सब हमने ऐड कराया है कंटेंट पेन पे c.add l1 c.add l2 सबको ऐड कराया है सेट बाउंस वाला था हाँ शो भी किया था. शो किया है तभी ये डिस्प्ले हो रहा है आप देख रहे हैं केवल सेट बटन आ बाउंस रहा है ठीक नहीं है क्या ठीक नहीं है सेट बाउंस नहीं सेट बाउंस भी ठीक है ठीक है सारे. क्लोज पहुंच गए हो सेट बाउंस का मतलब है आप बस क्या बताना है वो सोचो अच्छा केवल कितने कंपोनेंट ऐड हुए हैं एक सर ऐड करना छूट गया है शायद नहीं ऐड करा है हमने सबको ऐड करा है किया था करा था. c.add l1 c.add l2 सबको ऐड किया है चलिए ये एक्शन लिस्टन बताइए का भी काम ही नहीं है. ये बताइए कितने कंपोनेंट्स ऐड कराए हैं हमने हमने 10 कंपोनेंट्स 10 लेकिन ऐड केवल कितने सर हुए हैं फ्रेम का साइज 1 केवल 1 ऐड हुआ है कौन सा क्लोज बटन. यानी कि लास्ट कंपोनेंट यस सर. यस सर क्योंकि हमने इसको सबसे लास्ट में ऐड कराया था क्लियर स्टूडेंट्स यस सर. कहां पर ऐड हो रहा है क्या ये सेट बाउंड के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है नहीं. अच्छा वो नली लेआउट लेआउट सेट नहीं किया है। नली क्या बिल्कुल बिल्कुल समझ गए हैं आप लोग लेआउट हमने नल सेट नहीं किया है इसलिए ये बॉर्डर लेआउट के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है और बॉर्डर लेआउट क्योंकि फ्रेम का बाय डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट होता है और बॉर्डर लेआउट में जब हम पोजीशन नहीं देते हैं तो लास्ट कंपोनेंट सेंटर में ऐड होता है और वो कंपोनेंट पूरे फ्रेम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है
इसलिए लास्ट कंपोनेंट आपने क्लोज बटन ऐड कराया तो क्लोज बटन ऐड हो रहा है, सेंटर में ऐड हो रहा है और उसने पूरे फ्रेम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। हमें क्या करना है, ये जो कंटेनर है सी, इसका लेआउट सेट करना है, सी डॉट सेट लेआउट नल। नल। सेव करा दिया। वापस चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, कंपाइल करते हैं। हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली, रन कराते हैं। आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको, देख पा रहे हैं आउटपुट? यस सर। यस सर। लेकिन आप Yes, देख रहे हैं ये स्क्रीन में काफी नीचे आ रहा है, हाँ फ्रेम का साइज छोटा पड़ yes, गया। sir. और पहले लेकिन जो हम प्रोग्राम ऐड कराते थे वो अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में आता था, याद है आप लोगों को? अब नीचे Yes, क्यों sir. आ रहा है? अब ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने तो क्या नीचे आ रहा है? आउटपुट स्क्रीन हमारी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है इसमें एक मेथड यूज किया है सेट लोकेशन। देखिएगा दिस मेथड सेट लोकेशन, देख पा रहे हैं? यस सर। फ्रेम को हमें बाय डिफॉल्ट जैसे ही प्रोग्राम रन कराएं, फ्रेम हमारी स्क्रीन पर किस लोकेशन पे आए ये बताने के लिए मेथड होता है सेट लोकेशन। यहाँ पे आपने 400, 500 दिया था इसलिए इतना नीचे आ रहा है, इसको मैंने कर दिया 100, 100। अब देखिएगा अब ये स्क्रीन आपकी कहां पर आएगी। कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। देखिए अब स्क्रीन आपकी है 100, 100 पे आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो वो पोजीशन आप सेट लोकेशन से चेंज करा लेंगे। अब इसमें चेक कर लें, ओल्ड पासवर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है, न्यू पासवर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है, कंफर्म पासवर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इनकी विड्थ हमने 100 दी थी और इनका साइज 100 से ज्यादा है, तो इन तीनों की विड्थ बढ़ा देंगे। बाकी चेक कर लें, यूजर नेम लिख पा रहे हैं, पासवर्ड में डॉट्स आ रहे हैं, न्यू पासवर्ड में डॉट्स आ रहे हैं, कंफर्म पासवर्ड में डॉट्स आ रहे हैं, बाकी हमारा पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. तो वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले यहां पर हम विड्थ चेंज कर देते हैं। L2 के लिए हमने इसको दिया था 100, इसको हम कर देते हैं 150। देन L3 के लिए 150 एंड L4 के लिए 150। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम चाहते हैं यूजर ने जो यूजर नेम डाला है, ओल्ड पासवर्ड डाला है, न्यू पासवर्ड डाला है, कंफर्म न्यू पासवर्ड डाला है, उसके बाद यूजर चेंज बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही यूजर चेंज बटन पे क्लिक करता है, सबसे पहले हम चेक कराएं न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम होने चाहिए, तो सबसे पहले हम न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को चेक कराएंगे वो मैच होते हैं कि नहीं। अगर वो मैच नहीं होते हैं तो मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे और आगे कोई फर्दर टास्क प्रोसेस नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसके लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करानी है। इवेंट हैंडलिंग करानी है तो हमें पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इवेंट हैंडलिंग के लिए पैकेज होता है इवेंट, तो हमने कहा इंपोर्ट java.awt.event.asterisk। बटन के लिए इवेंट हैंडलिंग करानी है, पासवर्ड। बटन के लिए इवेंट हैंडलिंग करानी है तो हम इंप्लीमेंट कराएंगे एक्शन लिस्नर को। एक्शन लिस्नर को इंप्लीमेंट कराने के बाद अब हमें जिन जिन कंपोनेंट्स के लिए इवेंट हैंडलिंग करानी है उनको ऐड एक्शन लिस्नर कराना पड़ेगा। हमें B1 B2 के लिए करानी है, तो हमने कहा B1.add एक्शन लिस्नर ब्रैकेट में दिस, देन B2.add एक्शन लिस्नर ब्रैकेट में दिस। अब हमने एक्शन लिस्नर से इंप्लीमेंट करा लिया, एक्शन लिस्नर ऐड करा लिया, तो अब हमें मेथड बनाना पड़ेगा। एक्शन लिस्नर के अंदर मेथड होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन इवेंट ए। सबसे पहले चेक कराएंगे यूजर ने B1 बटन पे क्लिक किया है कि B2 बटन पे क्लिक किया है। इफ ए डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B2 इक्वल्स Then- नहीं आया, क्या हुआ? कुछ नहीं। Then we will say dispose।
Clear students? Yes, sir. Else if A dot get source equal to B1, तो बताइए क्या करें? सर पहले तो ओल्ड पासवर्ड मैच कराना चाहिए ना कि पासवर्ड ठीक है या नहीं। अगर मैच होगा तभी तो आगे काम करेंगे। देखिए अगर हम पहले ओल्ड पासवर्ड मैच कराते हैं तो ओल्ड पासवर्ड मैच कराने के लिए हमें डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराना पड़ेगा। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराएंगे तो हमें सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, बिकॉज डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी, तो इट विल टेक मोर टाइम। सपोज हमने डेटाबेस से डेटा मैच करा लिया, मैच कराने के बाद मैच हो गया, मैच होने के बाद फिर हम कंफर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को मैच कराएंगे, पता चला वो मैच नहीं हुए, तो क्या हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो डेटाबेस से डेटा मैच कराया है उसमें जो हमारी टाइम लगा है, उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस लगी है वो वेस्ट हो जाएगी और परफॉर्मेंस प्रोग्राम की स्लो हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने से पहले ही हम फ्रंट एंड पे हमें जितने भी टास्क परफॉर्म करानी है, जितने भी वैलिडेशंस करने हैं, पहले वो सारे वैलिडेशंस हम फ्रंट एंड पे परफॉर्म करा लेंगे। जब फ्रंट एंड से हमारा सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा, जब फ्रंट एंड पे वी विल बी हैविंग ऑल द वैलिड डेटा, then we will interact with the secondary memory, we will interact with the database. Clear students? ओके सर। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने की कोडिंग हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करेंगे, क्योंकि अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने की कोडिंग हम बटन पे करते हैं तो यूजर जितनी बार बटन पे क्लिक करेगा उतनी बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी, इसलिए हम एक ही बार डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराते हैं। तो ट्राई में उसकी कोडिंग कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए ड्राइवर लोड करेंगे। ड्राइवर लोड करने के लिए लिखेंगे क्लास डॉट फोर नेम डबल कोट्स में कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, देन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन डबल कोट्स में JDBC कॉलन MySQL कॉलन // localhost / database name, comma username, पासवर्ड, यूजरनेम पासवर्ड, comma password, closing of try, catch, exception E, system dot out dot print E, closing of catch. Clear students? अब यहां पर अगर यूजर ने B1 पे क्लिक किया है, यानी कि यूजर पासवर्ड चेंज करना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिट्रीव यूजर नेम फ्रॉम T1, ओल्ड पासवर्ड फ्रॉम T1, न्यू पासवर्ड फ्रॉम P2 एंड कंफर्म पासवर्ड फ्रॉम P3. Therefore we will declare 4 string object. This is for username, this is for old password, this is for new password, and this is for confirm password. Now we will say un equal to T1 dot get text. Then this is for OP, NP, and CP. Old password equal to P1 dot get text, then P2 dot get text, then P3 dot get text. This will be new password, this will be confirm password. अब हम मैच कराएंगे if new password dot equals confirm password. Clear students? यस सर। अगर न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर जाते हैं, अभी लिखेंगे क्या करना है, एल्स, यानी कि अगर नहीं करते हैं, अगर मैच नहीं होते हैं तो मैसेज पे करा लें j option pane डॉट शो मैसेज डायलॉग null comma new password and confirm password does not match.
क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। देन ये आपका एल्स क्लोज हो गया। एल्स क्लोज होने के बाद ये हमारा B2 B1 का एल्सिफ क्लोज होगा। ये B1 का एल्सिफ क्लोज हो गया। एल्सिफ क्लोज होने के बाद एक्शन परफॉर्म क्लोज होगा। एक्शन परफॉर्म क्लोज होने के बाद क्लास क्लोज होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? यस सर। चलिए अब यहां आ जाते हैं। अगर हमारा न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच कर जाते हैं तो हमें चेक करना है यूजर ने जो यूजर नेम डाला है और जो ओल्ड पासवर्ड डाला है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हम पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमें डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराना पड़ेगा मैच करने के लिए। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी हम पहले ही करा चुके हैं। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराने के लिए हमने कहा st equal to con dot prepare statement select count asterisk from table name where। अब उसमें हमने यूजर नेम और पासवर्ड के लिए क्या क्या फील्ड लिए थे उसके लिए हमें देखना Uname पड़ेगा। sir. उसके लिए MySQL में चलते हैं। MySQL में एक बार चेक करा लेते हैं। यूजर नेम के लिए हमने फील्ड लिया है यूजर अंडरस्कोर नेम और पासवर्ड के लिए हमने फील्ड लिया है पासवर्ड। तो वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। where user underscore name equal to question mark and password equal to question mark double quotes close bracket close semicolon। बताइए स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। st dot Yes, sir. set string 1 comma 1 में यूजर नेम जाना है और सेकंड में जाना है st dot set Password. string 2 comma old password। ओल्ड पासवर्ड है हमारा ओपी के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब डेटा रिट्रीव कराएं। डेटा रिट्रीव कराने के लिए rs इक्वल टू st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। देन वी विल से इंट c। पहले rs में फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे rs डॉट नेक्स्ट। फिर हमने कहा इंट c इक्वल टू RS ऊपर X हो गया। rs डॉट गेट इंट 1। RS में जो वैल्यू आएगी देखिए काउंट करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है यूजर नेम और पासवर्ड तो काउंट करके 0 रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो 0 से ज्यादा रिटर्न करेगा। वो वैल्यू हमने C में रिट्रीव करा ली। अब हमने कहा इफ C ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है एग्जिस्ट करता है। नहीं करता है यानी कि एल्स। इसका मतलब है एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैसेज डिस्प्ले करा लें J option pane. J option pane dot show message dialog invalid Null username oblique password password. double quotes close bracket close semicolon। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि यहां पर तो क्या करें? पासवर्ड चेंज कर दें। यस सर। पासवर्ड चेंज करने के लिए st इक्वल टू con डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। चेंज करने के लिए कमांड होती है अपडेट टेबल नेम इज लॉगिन सेट फील्ड नेम जिसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स? st डॉट सेट स्ट्रिंग 1 में देना है हमें न्यू पासवर्ड np के अंदर है। देन st डॉट सेट स्ट्रिंग 2 में देना है हमें यूजर नेम हमारा un के अंदर है। ऐसा करने से हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो हम मैसेज डिस्प्ले करा लें पासवर्ड
changed successfully. पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है तो सभी टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू ब्लैंक कर लें. p1 डॉट सेट टेक्स्ट p1 p2 p3. This is for p1, this is for p2, this is for p3. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. कर्ली ब्रेसेस हमने पहले ही सारे लगा दिए थे. ठीक है, अब बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इसमें प्रॉब्लम आएगी जहां पे हमने एसक्यूएल कमांड्स यूज किए हैं, उन्हें हमने ट्राई कैच में बंद नहीं किया है. नहीं किया. ठीक है, तो हमने एसक्यूएल कमांड्स इक्वल्स में यूज किए हैं. यहाँ पर ये इफ हमारा यहाँ से लेके और जहां खत्म होता है जी, यहाँ खत्म होता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई. ठीक है, ये सारा ट्राई में रहेगा, ये सब ट्राई में रहेगा. ये हमने कौन से इसके अंदर लगाया था? ये हमने लगाया था इक्वल्स के अंदर. तो ये हमारा एल्स इसका है यहाँ तक, जैसे यहाँ तक आएगा. यहाँ इस इफ को बंद होने से पहले यहाँ पे. नहीं, शायद ऊपर आएगा. ट्राई क्लोज देन कैच. सेव करा लेते हैं, कंपाइल कराते हैं. देखिए एरर आ गई है स्टूडेंट्स. क्या एरर आई है? ड्राइवर मैनेजर पे एरर दिखा रहा है क्योंकि ड्राइवर का हमने डी स्मॉल बना दिया है. चेंज कर देते हैं. ड्राइवर मैनेजर सेव करा लेते हैं, वापस कंपाइल कराते हैं. Has been compiled successfully. Yes sir. रन कराते हैं. ये देखिए रन हो गया है. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes sir. अब हम चेक कर लेते हैं हमने क्या यूजर नेम और पासवर्ड डाल रखा है. एक बार MySQL में जाके चेक कर लेते हैं. हमने यूजर नेम डाला है डिम्स, पासवर्ड डाला है India@123. इंडिया का I कैपिटल है. तो हम पहले यूजर नेम गलत डालते हैं. हमने यूजर नेम डाल दिया DVSGI, पासवर्ड डाल दिया 123. जो हमें नया पासवर्ड रखना है हमने डाला ABCDE. हमने पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सही डाले हैं, यूजर नेम गलत डाला है. तो मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड. चेंज पे क्लिक करते हैं. देखिए आ गया मैसेज इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड. यस सर. चलिए अब यूजर नेम सही डालते हैं, पासवर्ड गलत डालते हैं. ठीक है, फिर चेंज पे क्लिक करते हैं तो सेम मैसेज आना चाहिए. आप देख रहे हैं आ गया इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? अब यूजर नेम और पासवर्ड सही डालते हैं, लेकिन ये न्यू पासवर्ड हमने डाला ABCDE, कंफर्म पासवर्ड हमने डाला 12345. तो अब मैसेज आना चाहिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच. देखिए मैसेज आ गया पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. अब होना क्या चाहिए? देखिए जैसे ये मैसेज आया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये जो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये ब्लैंक हो जाने चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स?
यस सर। अभी करा के देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं। अब हम इसका पासवर्ड चेंज करके कर देते हैं, मान लीजिए वेलकम। अभी हमने रखा हुआ था इंडिया 1 2 3, अब हम चेंज करके कर देते हैं वेलकम। क्लिक ऑन चेंज, तो देखिए मैसेज आ गया, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। ओके करते हैं, सारे बॉक्सेस ब्लैंक हो जाते हैं। क्लियर? चेक कर लेते हैं माई एसक्यूएल में जाके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन नहीं हुआ चेंज। पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। मैसेज तो आ गया था पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, लेकिन एज यू आर सीइंग इन द माई एसक्यूएल, पासवर्ड हैज नॉट बीन चेंज्ड सक्सेसफुली इन द टेबल। तो मैं आपको कोड दिखाता हूं, फिर कोड में आप मुझे बताइए कहां गलती है, क्यों चेंज नहीं हुआ है। एरर कोई नहीं आई है, ठीक है? तो देखिए कोड देख लीजिए चेंज करने का, हमने यहां चेंज कराया था, अपडेट कमांड यहां लिखी हुई है। बताइए क्या गलती है जो चेंज नहीं हुआ? सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड तो किया है हमने। देखिए एरर नहीं आई है, इसका मतलब हमने जितनी भी कमांड लिखी हैं सारी सही हैं, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम कोई स्टेटमेंट लिखना भूल गए हैं। यस सर। क्या लिखना भूल गए हैं बताइए? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट। जब इंसर्ट अपडेट या डिलीट कमांड देते हैं तो हमें उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट लिखना पड़ता है। हमने यहाँ पर वो एग्जीक्यूट अपडेट नहीं लिखा है, st.execute अपडेट। इससे क्या हो रहा है, कमांड बन तो रही है लेकिन वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट अपडेट लिख दिया, सेव करा लिया, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं।